وہ دیوتاؤں کی چہیتی تھی، پر اسرار سرگوشیاں اس کی رہنما تھیں، اس کی آنکھوں میں موت کی کڑکتی بجلیاں پوشیدہ تھیں، وہ انتقام کی آگ میں جل رہی تھی، اس کے ہاتھ میں زندگی کی لکیر تھی اور نہ موت کی، وہ سانپ سے بھی زیادہ زہریلی تھی، اپنے دشمن کی کٹی ہوئی گردن دیکھنا چاہتی تھی، پر اسرار اور شیطانی قوتیں اس کی راہ میں حائل تھیں، پر اسرار قوتوں کی مالک ایک دو شیدہ کی ہنگاموں بری داستان عجیب دید بان۔ پروگرام میں تبدیلی کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا دشمن چوکنا ہو چکا ہے اور فوری طور پر ہوٹل چھوڑ دینے کی وجہ بھی یہی ہے، اور دشمن کو یہ بھی پتہ چل گیا ہے کہ میں یہاں بمبئی میں ہوں اور یہاں سے کوڈک جانے والی ہوں۔ میری بات سن کر شیام بابو کے چہرے پر فکر مندی کے آثار نظر آنے لگے اور پھر وہ بولا، اگر ایسا ہے تو فی الحال بمبئی سے آپ نکل جائیں اور اس کا بندوبست ہو جائے گا، اور یہاں سے پونا زیادہ دور نہیں، اور ہم وہاں تک آپ کو بے حفاظت پہنچا دیں گے، اور جب یہاں کے حالات نارمل ہو جائیں گے تو آپ کو خبر کرا دی جائے گی، اور ہفتے بھر بعد ہی چلنا ہے تو آپ وہاں رہ لیں، اور یہ محض میرا مشورہ ہے، آپ بہتر فیصلہ کر سکتی ہیں۔ نہیں شیام بابو، میں نے انکار کر دیا، اور بمبئی سے نکلنا اس وقت کسی طرح مناسب نہیں، اور یہاں اس کوٹھی میں مجھے کوئی خطرہ نہیں، اور آرام سے ایک ہفتہ گزارا جا سکتا ہے۔ ہاں، آپ لوگوں کے لیے خطرہ بڑھ گیا ہے، اور فوری طور پر ان تمام سرگرمیاں بند کر دیجیے، اور بہتر یہ ہے کہ تنظیم کے ارکان روپوش ہو جائیں، اور جس خطرے کی نشاندہی میں نے پہلے کی تھی وہ فوراً سامنے آ گیا ہے، اور آپ کو بھی میں نے رسک لے کر یہاں بلوایا ہے، اور مقصد آپ کو مطلوبہ خطرے سے آگاہ کرنا تھا۔ ایک ہفتے بعد صورتحال بدل جائے گی، اور یقینی طور پر کس طرح یہ بات کہی جا سکتی ہے، شیام بابو نے کہا۔ صورتحال بدل جانے سے میری مراد کچھ اور ہے، اور اس کا تعلق بمبئی سے نہیں، اور میں نے وضاحت کی، اور بمبئی کی حدود سے نکلنے کے لیے تو ایک ہفتے بعد بھی ہمیں بہت احتیاط کر برتنا پڑے گی، اصل مرحلہ اس کے بعد کا ہے، اور کوڈک میں داخل ہونا اب پہلے کی طرح آسان نہیں ہوگا، اور ہم اس سلسلے میں فرزندان کاویری سے بھی مدد لے سکتے ہیں، اور میں نے اسی لیے پہلے آپ کے سامنے یہ تجویز رکھی تھی کہ اتیٹا کو بھی بمبئی بلا لیا جائے، اس طرح اتیٹا کے لیے بھی خطرہ پیدا کر دیں گے، اور سرحدوں پر ریاست کی فوج اور جاسوس مقرر کر دیے جائیں گے، تو اتیٹا بھی چھپ نہیں سکے گا، اور ریاست کا راجہ چک ویر بھی اندرونی خطرات سے آگاہ ہو جائے گا۔ اس کے علم میں یہ بات آ جانا کہ فرزندان کاویری کا رابطہ کسی بیرونی زیریں زمین تنظیم سے بھی ہے اور خطرناک ثابت ہوگا، پر نہ اتیٹا بچے گا اور نہ سوامی جی، اور ان حالات میں کوئی بھی قدم بے سوچے سمجھے اٹھانا دانش مندی نہیں، اور میں نے شیام بابو کو سمجھایا، اور کچھ دیر تک شیام بابو خاموش رہا، اور پھر اسے میری بات سے اتفاق کرنا ہی پڑا۔ اب یہ بتائیے کرن جی کہ موجودہ حالات میں آپ سے رابطے کی کیا صورت ہوگی؟ اور شیام بابو نے سوال کیا، اور کسی قسم کے رابطے کی فی الحال تو کوئی ضرورت نہیں، اور کوڈک روانگی سے قبل ہی خود ہی میں آپ کو مطلع کر دوں گی۔ تو پھر اجازت ہے جاؤں؟ ہاں جائیے، اور شیام بابو اٹھ کر کھڑا ہوا اور عادل اسے کوٹھی کے گیٹ تک چھوڑنے آیا۔ پورا ایک ہفتے میں نے سکون و اطمینان کے ساتھ گزارا، اور اس عرصے میں آخری روز رات کو ایک خلاف توقع واقعہ ہوا، اور جسے میں نے دانستہ نظر انداز کر دیا۔ اس واقعے کا تعلق کویتا سے تھا، اور چوری چوری سے جاتا ہے، ہیرا پھیری سے نہیں۔ ہر فرد میں کچھ فطری کمزوریاں ہوتی ہیں، سو کویتا میں بھی تھیں۔ ان کمزوریوں کا تعلق ان کی تربیت اور ماضی سے تھا، اور مجبور ہو کر اس نے رانی کے ایک محافظ کو شکار کر لیا، اور شکار ہونے والے کو خود یہ خبر نہیں ہو سکی تھی کہ شکاری کون ہے۔ اگلے روز صبح میں نے شیام بابو کو فون کر کے تیاری کا سگنل دے دیا، اور رانی کو بھی بتا چکی تھی کہ جانے والی ہوں، اور شیام بابو نے اسی دن شام کو آنے کے لیے کہا تھا۔ جو وقت مقرر تھا اس پر وہ آ گیا، اور اب تک میں حکومت کے کسی بھی اقدام سے بے خبر رہی تھی۔ تو پہلا سوال اسی سلسلے میں تھا۔ آپ نے بر وقت آگاہ کر دیا تھا، اس لیے ہمارا ایک بھی بندہ گرفتار نہیں ہوا۔ ہاں، کچھ بے گناہ لوگ ضرور شبے میں پکڑے گئے، اور شیام بابو نے جواب دیا، پولیس کو بھی اپنی کارگزاری دکھانا پڑتی ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ یہاں سے ہمیں کب نکلنا ہے؟ اور رات کو 9 بجے ہم چل دیں گے، شیام بابو نے بتایا، اور پھر دریافت کیا کہ آپ نے اپنے سامان وغیرہ کے بارے میں کیا سوچا؟ اب اس کا کوئی مسئلہ نہیں، سامان اس کوٹھی میں بھی چھوڑا جا سکتا ہے، اور کوڈک سے واپس آ کر لے لیا جائے گا، اور چند جوڑی کپڑے اور ضروریات کا سامان
ایک ایئر بیگ میں آ سکتا ہے اور بطور امانت ہمارے سوٹ کیس یہیں رہیں گے اور میرے اور سشما کے کپڑے وغیرہ ایک بڑے ایئر بیگ میں آ جائیں گے اور پنڈت جی تو ہیں آپ کے ساتھ اور آپ جو ایئر بیگ لائے ہیں اسی میں یہ اپنا سامان رکھ لیں گے۔ اور میں نے کہا تو پھر فون کیے دیتا ہوں اور اس وقت کار بھیجنے کی ضرورت نہیں، میں کہہ کر آیا ہوں کہ فون کروں گا۔ اس کے بعد شیام بابو نے فون پر اپنے بندوں کو ضروری ہدایات دیں اور کار اب 8:30 بجے تک باندرا پہنچنی تھی اور شیام بابو نے آدھے گھنٹے کا مارجن رکھا اور کار لے کر آنے والا تنظیم کا رکن پہلے بھی بمبئی سے جنوبی سلسلہ کوہ تک جا چکا تھا اور یہ بات شیام بابو نے ہی بتائی کہ جہاں سے ہمیں گھوڑوں پر سفر کرنا تھا اور وہاں ضروری سامان پہنچ چکا تھا۔ شیام بابو کو عادل کے ساتھ اپنے کمرے میں چھوڑ کر میں نے کویتا کو روانگی کے متعلق بتایا اور پھر اوپری منزل پر رانی کے پاس پہنچ گئی۔ کب تک جاؤ گی اور رات کا کھانا تو کھا کر چلو گی؟ رانی نے پوچھا۔ ہاں، مگر 8 بجے تک کھانا وغیرہ سے فارغ ہو جانا ہے اور 9 بجے چل دوں گی، میں نے بتا دیا۔ اور اس وقت تم سے یہ کہنے آئی تھی کہ میرا اور میرے دونوں ساتھیوں کا سامان یہیں رہے گا اور نیچے کسی کمرے میں رکھوا دینا، سامان بھی کیا ہے، سوٹ کیس ہیں بس۔ تو اس کا مطلب ہے کہ تم جلد لوٹ آؤ گی؟ اور اسے مسکرا کر میری طرف میانی خیز نظروں سے دیکھا۔ جلدی بھی واپسی آ سکتی ہوں اور دیر بھی لگ سکتی ہے، اور دیر میں آؤ کہ جلدی تمہارے سوٹ کیس میں اسی کمرے میں رکھوا کر تالا لگوا دوں گی اور جو تمہارا بیڈ روم ہے اور جب بھی لوٹو گی تمہاری عمارت تمہیں مل جائے گی۔ اس کے لیے بمبئی میں میرا موجود ہونا بھی ضروری نہیں، اور تمہیں تو اب میرے سبھی ملازم و محافظ اچھی طرح جان چکے ہوں گے۔ اور میں اٹھنے لگی تو رانی بھی میرے ساتھ تھی۔ اور رات کو تم ہی چلی جاؤ گی تو کچھ دیر تمہارے ساتھ وقت گزاری کہ صحیح۔ اور رانی اپنے کمرے سے میرے ساتھ نکلتے ہوئے کہنے لگی، اور تمہیں تو اس پر کوئی اعتراض نہیں؟ تمہیں میں ایک خاص چیز دکھاتی ہوں۔ اور رانی مجھ سے بولی، اور پھر اس نے اپنے ایک ملازم کو آواز دے کر بلایا اور وہ تالا لے کر آؤ جو میں علی گڑھ سے میں نے منگوایا ہے۔ ایسی کیا بات ہے اس تالے میں جو تم مجھے دکھا رہی ہو؟ اور میں نے پوچھا، اور رانی میرے ساتھ بیٹھی تھی اور سامنے والے صوفے پر شیام بابو، عادل اور کویتا تھے اور درمیان میں میز تھی اور وہ تینوں بھی ہماری باتیں سن رہے تھے۔ میرے سوال کے جواب میں رانی نے کہا کہ تمہیں اس لیے وہ تالا دکھانا چاہتی ہوں کہ شاید تم نے ایسا تالا نہ دیکھا ہو۔ اس کے علاوہ یہ کہ یہی تالا اس کمرے میں ڈالا جائے گا جہاں تمہارا سامان رکھا جائے گا اور اس تالے کی ماسٹر کی تم اپنے ساتھ لے جانا۔ مگر کس لیے؟ اس کی ضرورت کیا ہے؟ میں بولی، ہے ضرورت، تالا آ جانے دو پھر بات کرنا، اور تمہیں میں بہت ذہین سمجھتی ہوں اور تالا تمہارے لیے امتحانی پرچہ ثابت ہوگا۔ اور رانی یہ کہہ کر ہنسی، اور میں تمہیں وہ تالا اور تینوں چابیاں دے دوں گی مگر تم تالا نہیں کھول سکو گی۔ اور اسی وقت میری نگاہ عادل کی طرف اٹھی اور وہ پہلو بدل رہا تھا اور میں نے محسوس کیا جیسے وہ کچھ کہنا چاہتا ہے، اور مجھے یاد آ گیا کہ اس کی ننیال علی گڑھ کے قصبے ہی کی تھی اور جس طرح ہندوستان کے دوسرے شہر مختلف صنعتوں کے لیے مشہور تھے، مثلاً مراد آباد برتنوں اور میرٹھ کینچی بنانے کے لیے، اسی طرح علی گڑھ کفل سازی میں شہرت رکھتا تھا۔ اور میں نے اسی وجہ سے رانی کی بات نظر انداز کرتے ہوئے عادل کو مخاطب کیا کہ تم کیوں بے چین ہو بالکمند؟ اگر میڈم اجازت دیں تو وہ تالا میں کھول دوں؟ اور عادل نے مہذب لہجے میں مجھ سے کہا، اور میڈم اس نے رانی کو کہا تھا، اور رانی نے اسے چونک کر دیکھا اور پھر کہنے لگی، چلو تم کھول کر دکھا دو۔ ملازم تالا لے کر آ گیا تو ہاتھ بڑھا کے تالے میں نے لے لیا۔ نہیں، رانی بولی، اور پہلے بالکمند کو کوشش کر لینے دو، دیکھ تو لوں نہ میں۔ اور میں نے مسکرا کر کہا، ہاں دیکھ لو۔ اور میں نے تالے کا جائزہ لیا اور پیتل کا وہ تالا بڑا اور خاصا بھاری تھا اور 3 چابیاں تھیں جن میں سے ایک پر انگریزی حرف ایم کھدا ہوا تھا اور تالا خوبصورت اور چمکدار تھا۔ تالے کے اوپر نیم دائرے کی صورت میں اس کا نام لکھا تھا اور اوپر سے نیچے تک یوں لگتا تھا جیسے مختلف چوڑی پیتل کی پیٹیوں کو جوڑ دیا گیا ہو اور جہاں سے چابی داخل کی جاتی اس حصے کو بھی پیتل کے ایک ٹکڑے سے ڈھک دیا گیا تھا تاکہ گرد و غبار اندر داخل نہ ہو، اور یہ پیتل کا ٹکڑا دائیں بائیں اور اوپر نیچے کیا جا سکتا تھا۔ اسی کے اوپر علی گڑھ کے اس فرم کا نام کھدا ہوا تھا جس نے یہ تالا بنایا تھا، اور میں نے پڑھا ایس سلیم الدین اینڈ سنز، اور اسی کے نیچے انگریزی میں علی گڑھ اور میڈ ان انڈیا لکھا تھا، اور تالے کا کڑا موٹا اور پالش کیا ہوا تھا، اور میں نے کڑا کھولنا چاہا مگر نہیں کھلا۔ یہ چابی کے بغیر نہیں کھلے گا، رانی نے بتایا، اور اب تم نے تالا اچھی طرح دیکھ لیا ہے، اس لیے بالکمند لو، بالکمند کھول دو اسے۔ اور میں نے تالا اور تینوں چابیاں عادل کو دے دیں۔
आदल ने ताले को उलट पलट कर देखा और फिर पिछले हिस्से पर अंगूठे से दबाव डाला और खट की आवाज के साथ ताले के ऊपरी हिस्से की एक प्लेट हट गई और उसी के नीचे चाबी दाखिल करने का एक और हिस्सा नजर आने लगा और आदल ने उसमें चाबी डालकर ताला खोल दिया। जिंदाबाद। और रानी ने फराख दिली से तारीफ की, और तुम्हारा ये आदमी वाकई कमाल का है। उसने यकीनन ये ताला पहले भी कभी देखा या खोला होगा, और कोई आम आदमी इस ताले का मैग्नेट नहीं समझ सकता। और उसमें डबल सिस्टम है, और एक सिस्टम का तल्लुक 2 चाबियों से है और दूसरा सिस्टम मजीद हैरान कुन है। और ये कहते हुए उसने आदल से ताला ले लिया, और कड़े में 2 मोटे मोटे खांचे कुछ फासले से बने हुए थे, और जो रानी ने मुझे दिखाई और फिर बोली, ये 2 चाबियां उसी वक्त तक कार आमद हैं जब तक मास्टर की इस्तेमाल ना की जाए, और मास्टर की का इस्तेमाल पहले सिस्टम को जामद कर देता है। और यूं समझो कि इस ताले की 2 चाबियां मेरे आदमियों के पास हैं, और वह दोनों चाबियों से ताला खोल और बंद कर सकते हैं। और फर्ज करो कि वह 2 आदमी बेवफाई पर उतर आते हैं और जिस कमरे में ताला लगा है और वहां कोई कीमती शय मौजूद हो और मास्टर की मेरे पास है, तो मैं इन दोनों की चाबियों को बेकार कर सकती हूँ, और वो चाहें तो ताला नहीं खोल सकेंगे, और उसके लिए मास्टर की से एक बार ताला खोलकर बंद करना काफ़ी है। और फिर जब भी मैं चाहूँ मास्टर की से ताला खोलकर पहले सिस्टम को कार आमद बना सकती हूँ और ताला खराब नहीं होगा। ये ताला बुनियादी तौर पर 2 हिस्सों में तकसीम है, और ऊपर के अंदरूनी हिस्से और नीचे के बैरूनी हिस्से में चूड़ियाँ हैं जो कसे जाने के बाद एक दूसरे में प्युस्त हो जाती हैं। उसे कहीं से तोड़ना मुमकिन नहीं, और इसी तरह इसका कड़ा अंदर से वेल्ड किया गया है जो खुल सकता है और बंद भी हो सकता है, मगर टूट नहीं सकता। और मास्टर की से इसे बंद करने के बाद इसके दोनों हड़के कड़ी के गहरे खांचों में बैठ जाते हैं और ताले पर हथौड़े बरसा लो मगर यह खुलेगा नहीं। कड़ा निकल कर स्टील का है और इसे काटना खेल नहीं, और मुख्तसरन ये कि दरवाज़ा तोड़ना ताला खोलने के मुकाबले में आसान है। लो तुम इसे 3 चाबियों से खोल के और बंद करके देखो। और रानी ने वो ताला और चाबियां मुझे दे दी। तो ये पहला सुराख धोखा है, और मैंने उस सुराख में चाबी डाली लेकिन चाबी नहीं घूमी, और फिर उसी चाबी को ऊपर वाले सुराख में डाला तो ताला खुलने के बाद बंद होने लगा। उसके बाद मास्टर की से ताला बंद करके दोनों चाबियों से खोलना चाहा तो ये मुमकिन नहीं हुआ और चाबियां नहीं घूमी। और ये बहुत कीमती ताला है और सिर्फ आर्डर पर महदूद तादाद में बनाया जाता है, रानी ने बताया। और अलीगढ़ की इस फिल्म से मैंने 6 ताले बनवाए थे, और जिनमें से एक ये है, और मुझे नहीं मालूम कि तुम्हारे सूट केसों में कोई कीमती शय है या नहीं, लेकिन अमानत होती है और उसकी कीमत भी कुछ भी हो। और मैं इसलिए ये चाहती हूँ कि तुम इस ताले की मास्टर की अपने पास रखो और खुद कमरे में ताला लगाओ, और बकिया दोनों चाबियाँ मेरे पास रहेंगी। बिल्कुल नहीं, मैंने वादे तौर पर इनकार कर दिया, और उसका तो एक सबब तो ये है कि मैं मास्टर की संभाल कर नहीं रख सकूंगी, और मेरे लिए और बहुत से जमीले काफ़ी हैं। और दूसरी वजह यह है कि मुझे तुम पर मुकम्मल भरोसा है, और दोनों बल्कि ताले की 3 चाबियां अपने ही पास रखो। तुम लौट कर आई और उस वक्त मैं बम्बई में ना हुई तो फिर, और तुम्हारा कोई बाइतमाद आदमी तो होगा यहाँ। अपने सिवा में किसी पर एतमाद नहीं करती, और मजबूरन मुझे रानी की बात मानना पड़ी। अच्छा तो फिर मैं आती हूँ अभी, मैंने कहा, और उठते हुए अपने 3 साथियों को इशारा किया। 3 सूटकेस मैंने अपने कमरे में रखवाए, और उन्हीं में वह सूटकेस भी था जिसमें 1 लाख रुपए थे। कविता का और अपना ज़रूरी सामान नीज कपड़े मैंने अपने एयर बैग में रख लिए, और शयाम बाबू के एयर बैग में आदल ने अपने कपड़े और सामान ठोस लिया। और टेलीफोन सेट भी मैंने एक मुलाजम से कहकर बाहर कमरे में रखवा दिया, और तमाम तैयारी करके बाहर निकल आए। कविता मेरे इशारे पर मुझ समेत तमाम अफराद के गिर्द हिसार खींच चुकी थी, और शाम 6 बजे के बाद उसने 24 घंटे के लिए हिसार खींचा था। अब आइंदा रोज़ शाम 6 बजे तक हम कम अज़ कम चंद्रमोहन की नज़रों से उज्जल रहते, और अगले रोज़ शाम को जो सूरत हाल होती उसके मुताबिक मैं कोई कदम उठाती, और सिलसिला कोहे सब बाद में दाखिल होने के बाद अंग्रेज़ हुकूमत की तरफ से ख़तरा टल जाता, और असल ख़तरा चंद्रमोहन की तरफ से था, और सो मैंने उसका तोड़ कर लिया था। बांद्रा से सिलसिला कोह तक का सफ़र 3 घंटे का था, और रात को 12 बजे के करीब हमें सरहद अबूर करना थी। पहाड़ों में पहुंचकर मैं महफूज हो जाती, फिर एक और ही खेल शुरू होना था, और जिसके लिए मैं जहनी तौर पर तैयार पहले से ही थी। 1 घंटे तक रानी मुझसे इधर उधर की बातें करती रही, और मैं उससे गुफ्तगू तो कर रही थी मगर मेरा जहन कहीं और था।
और मुकर्रर वक्त पर कार आ गई और इतला मिलते ही मैं उठकर खड़ी हुई और रानी मुझे बाहर तक छोड़ने आई। श्याम बाबू आगे बैठा, मैं, कविता और आदल पीछे, और दोनों एयरबैग गाड़ी की डिग्गी में रख दिए गए और मेरे अलावा आदल, श्याम बाबू और कार ड्राइवर अहमद के पास खामोश मौत मौजूद थी। और बम्बई से सिलसिला कोह तक पहुंचने के लिए इतना काफ़ी था और सफ़र शुरू हो गया। सिलसिला कोहे संबाद तक पहुंचने में हमें एहतियात के पेश नज़र 3 घंटे के बजाय मजीद आधा घंटा लग गया और पहाड़ों के दरमियान पहुंचकर मुझे यूं लगा जैसे मैं अपने घर में आ गई हूं। हम चारों को छोड़कर कार वापस जा चुकी थी और एक एयर बैग श्याम बाबू के कंधे से लटका हुआ था और दूसरा आदल के पास, और मेरे और श्याम बाबू के हाथ में छोटी टार्चें थीं। हम दोनों आगे और आदल और कविता पीछे पीछे चल रहे थे और कुछ ही देर बाद हम उस चट्टान के नीचे पहुंच गए और जिसके सामने वो गार था जहां श्याम बाबू के 2 आदमी छुपे हुए थे। और गार का धाना खासा बड़ा था और श्याम बाबू ने उधर टार्च की रोशनी डाली और जवाबन उधर भी एक टार्च चंद लम्हों के लिए रोशन होकर बुझ गई। हम जब गार में दाखिल हुए तो उसके अंदरूनी हिस्से में रोशनी नजर आई और उसी के साथ मुझे घोड़ों की हनहनाने की आवाज़ सुनाई दी और दोनों में से एक शख्स गार के दहाने पर था और दूसरा अंदर। श्याम बाबू ने पहले ही शख्स को मुखातब किया जो हमारे साथ साथ चल दिया। और कोई खतरा तो नहीं? इस वक्त तो नहीं, लेकिन शाम को खतरा था, उस शख्स ने जवाब दिया और जिलेबाज से मुसलमान ही लगता था। किस तरह का खतरा? श्याम बाबू ने वजाहत चाही। हमने कुछ अजनबी लोगों को पहाड़ों में चकराते देखा और ये मैं सुनकर चौंकी, मगर बोले कुछ नहीं। और हम सब उस जगह तक पहुंच गए जहां दूसरे शख्स दिया जलाए बैठा था और वह हमें करीब आता देखकर एहतरामन उठ खड़ा हुआ और कुछ ही फासले पर 4 घोड़े बंधे हुए थे और दूसरे शख्स ने हमारे लिए चटाई बिछा दी और फिर श्याम बाबू से बोला, मैं अभी आया। और वह दोनों आदमी गार के धाने की तरफ चले गए और हम चारों चटाई पर बैठ गए। ये अजनबी लोग कौन हो सकते हैं? श्याम बाबू खुद कलामी के अंदाज में कहने लगा। अशरफ और सादक आ जाएं तो मालूम हो। और पहला शख्स का नाम अशरफ और दूसरे का नाम सादक था और बाद में मुझे मालूम हुआ था कि उन दोनों ही की उम्रें 40 साल से कम नहीं लगती थीं और वो गार के दहाने को पत्थरों से बंद करने गए थे। मैं बताती हूँ। और श्याम बाबू के वह अजनबी लोग कौन हो सकते हैं? मैं इत्मीनान से बोली। आप किरण जी और हमारे ही साथ तो आई हैं, श्याम बाबू ने झिझकते हुए कहा। तो क्या हुआ? मैं मुस्कुराई। और आप गालबन ये कहना चाहते हैं कि मैंने उन अजनबी को देखा ही नहीं, तो किस तरह उनके बारे में कुछ बता सकती हूँ? जी हाँ। और श्याम बाबू हकला कर रह गया। क्या साथ भी तो कुछ अहमियत रखते हैं ना? और आप रियासत के जासूसों को क्यों भूल रहे हैं? और वो भी इनकी तलाश में आ सकते हैं। आ तो सकते हैं, मगर इस सूरत में जबकि उन्हें हमारी आमद का पहले से इल्म हो, और वो तो उन्हें इल्म है। मगर किस तरह? आदल पहली मर्तबा बोला। हम बम्बई से कब रवाना होकर यहाँ पहुँचेंगे और कोडक के जासूसों को किस तरह मालूम हो सकता है? और मेरे कुछ कहने से पहले श्याम बाबू बोल उठा, उन अजनबी लोगों का ताल्लुक फर्जंदाने कावेरी से भी तो? बिल्कुल नहीं। और मैंने श्याम बाबू की बात काट दी। सरहदी इलाके की निगरानी के लिए रियासत की फ़ौज के जासूस ही सरगर्म अमल हैं और उस खतरे की निशानदही मैंने बम्बई में ही कर दी थी और शायद आपके ज़हन से मेरी बात निकल गई। हाँ, आपने इस सिलसिले में कुछ कहा तो था। श्याम बाबू की पेशानी शिकन आलूद हो गई और यूं लग रहा था जैसे वह कुछ सोच रहा हो। जब आपने रहनुमाई के लिए अतीता को बुलाने की बात की थी तो मैंने उससे इख्तलाफ किया था और मैंने कहा था कि सरहदों पर फौज और जासूस मुकर्रर कर दिए जाएंगे तो अतीता भी उनसे छुप नहीं सकेगा। याद आया आपको? जी हाँ। और श्याम बाबू ने तस्दीक की और फिर बोला, मगर इस बात को तो 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया और फिर ये कि यहाँ रियासत की फ़ौज भी नहीं, और अगर फ़ौज यहाँ होती तो हम इतनी आसानी से यहाँ ना पहुँच पाते। क्या ये मुमकिन नहीं कि फ़ौज हफ्ते भर पहले यहाँ आकर वापस चली गई हो और वापसी के वक्त उसने अपने जासूस छोड़ दिए हों और उन्हीं को आपके आदमियों ने देखा हो और मैं दानिस्ता असल बात छुपा रही थी क्योंकि उसका ताल्लुक मेरे पुरअसरार रूहानी से तजर्बे से था। खुद अपनी आंखों और कानों से मैं सब कुछ देख और सुन चुकी थी और रियासत की फ़ौज के वज़ीर दफ़ा भूपा और राजा चकवीर को मैंने देखा था और उनकी गुफ्तगू पुरअसरार तजर्बे के दौरान में हुई थी। मेरी बात सुनकर श्याम बाबू ने कहा, अशरफ और सादक को आ लेने दो और उनसे मज़ीद पूछ गुछ कर लेते हैं और आपका शुबा मुझे दुरुस्त मालूम होता है। मैं खामोश हो गई और मजबूत जिस्मों वाले श्याम बाबू के दोनों आदमी लौट आए तो बातचीत दोबारा शुरू हुई और मेरा अंदाज़ा दुरुस्त ही साबित हुआ। इन हालात में नई हिकमत अमली ये होना चाहिए कि हम रात के वक्त सफ़र करें।
اور یہ صورتحال نہ بھی ہوتی تو میں ایسا ہی کرتی۔ اور اگر اس علاقے میں ریاست کی فوج کے جاسوس موجود ہیں تو رات کے وقت بھی ہم ان کی نظروں سے کس طرح محفوظ رہ سکتے ہیں؟ عادل بولا، تم یہ بھول رہے ہو کہ آدمی بہرحال آدمی ہوتا ہے، اور تمہارا کیا خیال ہے؟ اور وہ اپنی اس ڈیوٹی پر خوش ہوں گے؟ ان کے لیے پہاڑوں کے درمیان بھٹکنا، سختیاں جھیلنا اور شب و روز مارے مارے پھرنا زیادہ بہتر ہے یا مڈکیری، کشل نگر اور نالک ڈاڑ وغیرہ میں رہنا؟ اور ایسے معاملات میں حکم مرگی مفاجات والا معاملہ ہوتا ہے، اور بھومپا جو اس ریاست کا وزیر دفاع اور فوج کا کمانڈر ان چیف بھی ہے، اسی کے حکم پر تو سرحدوں پر فوجی جاسوس مقرر کیے گئے ہوں گے۔ اور جس طرح آدمیوں کے چہرے ایک دوسرے سے نہیں ملتے، اسی طرح ان کے ذہن بھی مختلف ہوتے ہیں۔ ہر آدمی کا انداز فکر اس کے ذہن اور حالات کے تابع ہوتا ہے۔ ہر پیشی اور ہر طبقے میں فرق شناس لوگ بھی ہوتے ہیں، اور اپنے فرائض سے کوتاہی برتنے والے بھی۔ اسی کے ساتھ ریاست کے داخلی معاملات کو بھی مد نظر رکھو۔ بھومپا اس ریاست کے بد کردار راجا چکویر کی مجبوری ہے، اور ایسا نہ ہوتا تو چکویر کبھی کا بھومپا کو الگ کر چکا ہوتا۔ اصل مسئلہ مقامی اور غیر مقامی کا ہے، اور چکویر کا باپ لنگ راج بہت بڑا گھاگ تھا، جس نے اپنے ولی عہد کی شادی ایک مقامی عورت سے کی، اور میں بولتی رہی، اور اسے تم سیاسی شادی کہہ سکتے ہو۔ لنگ راج نے مستقبل کے ماتھے پر لکھی تحریر پڑھ لی، اور وہ عیار سمجھ گیا تھا کہ جب تک مقامی باشندوں کو زیر دام نہیں لایا جاتا، حکومت نہیں چلے گی۔ اور لنگ راج نے اسی لیے اپنے بیٹے چکویر کے لیے ایک با اثر مقامی گھرانے سے رشتہ جوڑا، اور راجا چکویر کی بیوی گورما جو اس ریاست کی رانی کہلاتی تھی، کمانڈر ان چیف بھومپا ہی کی رشتہ دار ہے، اور رشتے میں گورما بھومپا کی بہن لگتی ہے۔ اور تمہیں ایک بات اور بتا دوں کہ جنوبی ہند میں ہندو بھی مسلمانوں کی طرح اپنے رشتے کی بہنوں سے شادی کر لیتے ہیں۔ اور اس سے قطعی نظر اب تمہاری سمجھ میں آیا کہ بھومپا کس لیے راجا چکویر کی مجبوری بنا ہوا ہے۔ اور چکویر کی ایک مجبوری تو بھومپا ہے، اور دوسری مجبوری بسودیا، اور وہ ان دونوں میں سے کسی کو نہیں چھوڑ سکتا۔ چکویر کی کوشش یہ ہے کہ وہ کسی بھی طرح بھومپا کی گرفت سے نکل جائے، مگر ایسا ممکن نہیں۔ اور وجہ یہ ہے کہ ریاست کے محب وطن با اثر لوگ بھومپا کے حامی ہیں، اور عوام اس کے ساتھ ہیں۔ انگریز اسی داخل خلفشار سے فائدہ اٹھا کر ریاست پر ہاتھ صاف کرنے کی کوشش میں ہیں۔ میرے خاموش ہوتے ہی شیام بول اٹھا، اور فرزندان کاویری، یہ کوئی اور کھیل معلوم ہوتا ہے۔ میں نے واضح طور پر کہہ دیا، اور اس کا اندازہ مڈکیری جا کر ہوگا۔ ریاست میں دو اصل قومیں ہیں، ایک برسری اقتدار اور حکمران خاندان جو بہرحال غیر مقامی ہے، اور دوسری قوت ریاست کے مقامی لوگ، اور یہی اصل طاقت ہیں۔ اگر انگریزوں نے ریاست پر کسی بھی طرف سے اور کبھی بھی حملہ کیا تو یہی مقامی لوگ یعنی کوڈ کی حکمران خاندان کو بچا سکتے ہیں، اور میرے اندازے کے مطابق وہ وقت پڑتے ہی ایسا ہی کریں گے۔ اور اس کا سبب وہ سیاسی شادی ہے جس کا ذکر میں کر چکی ہوں، اور ان کی بیٹی گورما راج محل میں ہے، اور انگریزوں کو اگر کوئی فائٹ دے سکتا ہے تو وہ یہی لوگ ہیں۔ اور پھر تو ہمیں انہی لوگوں سے رابطہ قائم کرنا ہوگا، شیام بابو نے کہا۔ اور آپ نے ریاست کے سیاسی حالات کا جو تجزیہ کیا ہے وہی درست لگتا ہے، اور مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آپ ریاست کے اندرونی حالات سے اس حد تک باخبر ہوں گی۔ اب تو یہ سوچنا پڑے گا کہ ہمیں مڈکیری پہنچ کر فرزندان کاویری سے رابطہ قائم کرنا چاہیے یا نہیں، اور نوجوانوں کے جذبہ حب الوطنی کو ابھار کر انہیں کسی خاص مقصد کے لیے استعمال بھی تو کیا جا سکتا ہے۔ آپ بالکل صحیح خطوط پر سوچ رہے ہیں شیام بابو، اور اس کے باوجود موجودہ حالات کے پیش نظر ہمیں فرزندان کاویری ہی کی میزبانی قبول کرنا پڑے گی۔ ہمیں تو فی الحال مڈکیری میں قدم جمانے کے لیے جگہ چاہیے، اور بعد میں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اور یہ کہہ کر میں نے اس موضوع پر مزید گفتگو سے گریز کیا، اور پھر بولی، ہمیں یہاں سے روانگی میں زیادہ دیر نہیں کرنی چاہیے، اور اس وقت نصف شب گزر چکی ہے، اور آج کی رات سفر کے لیے ہمارے پاس صرف چند گھنٹے باقی ہیں، اور صبح کا اجالا پھیلنے سے پہلے ہمیں کسی محفوظ پناہ گاہ تک پہنچنا ہے، اور پھر جب اندھیرا پھیل جائے تو ہم دوبارہ سفر شروع کریں گے، اور کل دن بھر ہمیں آرام کرنا ہوگا۔ پھر ہم نے وہاں سے روانگی میں زیادہ دیر نہیں لگائی، اور میری ہدایت کے مطابق ضروری سامان سفر گھوڑوں کے ساتھ باندھ دیا گیا، اور غار کے دہانے سے پتھر ہٹائے جا چکے تھے۔ ایک گھوڑے کی لگامیں تھامے ہوئے غار سے باہر آئی، اور میرے ساتھ کویتا تھی، اور دوسرا گھوڑا شیام بابو اور عادل کے لیے تھا، اور ان دونوں کا سامان انہی کے پاس تھا۔ اشرف اور صادق کو بھی ہمارے بعد
उस गार से निकल जाना था और ये मशवरा भी मैंने ही दिया। और उनमें से मैंने कहा था कि गार में कोई ऐसा निशान ना छोड़ें जिसकी वजह से यह ज़ाहिर हो कि वहाँ किसी ने क़याम किया था। और वो उतरते चाँद की तारीखें थी और आसमान पर जगह जगह बादल भी थे, और चाँद बादलों में छुप जाता तो अंधेरा फैल जाता, और बादलों से निकल आता तो कुछ देर को जर्द सी रोशनी चट्टानों, पहाड़ों और नाहमवार रास्तों पर बिखर जाती। टारच जलाने से मैंने श्याम बाबू को मना कर दिया और मैंने कहा था कि दरा देर बाद हमारी आंखें अंधेरों से मानूस हो जाएंगी, और आपको तो वैसे भी अंधेरे में ज़्यादा नज़र आता है, आदल बोला। और श्याम बाबू के साथ होने की वजह से वो हद अदब भी था। इस पर मैंने धीरे से हंस दी और मैं आदल का इशारा समझ गई थी। अब स्टेट गेस्ट हाउस से अगवा का वाक़या मुझे याद आ गया, और उस रात भी आदल मेरे साथ था। क्या पैदल ही सफ़र चलने का इरादा है? आदल ने फिर मुखातब किया, और दूसरे घोड़े की लगाम थाम रखी थी और साथ चल रहा था, और श्याम बाबू उसके पीछे था। पहली बात तो ये कि गुफ्तगू से इज्तनाब करो, और बहुत ज़रूरी बात हो तो आवाज़ धीमी रखो, और मत सराटे में धीमी आवाज़ भी दूर तक सुनी जा सकती है। हम रियासत के हदूद में दाखिल हो चुके हैं और इलाके में रियासत की फ़ौज के जासूस मौजूद हैं। ज़रूरी नहीं कि वह सभी सो रहे हों, और उनमें कोई फ़र्द शिनात भी हो सकता है। और ये कहते हुए खुद मेरी आवाज़ भी धीमी थी। हम उससे निकलने के बाद घोड़ों पर सवार होंगे, और सिमत पीमा के मुताबिक हमारा सफ़र सही सिमत में है। और मैंने रियासत का नक्शा इसलिए देखा था कि हम कहीं पहाड़ों में भटक ना जाएं। इस बात को सुनकर आदल खामोश हो गया और कुछ नहीं बोला, और हमारा सफ़र खामोशी से जारी था। और मेरे अंदर ख्वाबीदा एक पुरइसरार कुव्वत जाग उठी थी, और अब मैं अंधेरे में दूर दूर तक देखने में थी। और नेक रो अजीम मुहिमन की अता करदा पुरइसरार कुव्वत मुझे गिरदो पोश से बेखबर न रखती, और मेरे बेदार होने वाली ये पुरइसरार कुव्वत किसी मुमकिन खतरे की इलामत भी हो सकती है। और मैंने सोचा, और मेरे बढ़ते हुए कदम रुक गए, और आदल ने भी अपना घोड़ा रोक लिया। श्याम बाबू और आगे और सरगोशी की क्या हुआ? कुछ नहीं, और मैंने भी सरगोशी में जवाब दिया। अब मेरे घोड़े की लगामें थाम लें, और आगे बढ़ने से पहले मैं इर्द गिर्द का जायजा लेना चाहती हूँ। और यहीं बाएं जनब आप इस पहाड़ के दामन पर रुक जाएं, और कोशिश करें कि आहट कम से कम हो, और बाल कमंद और सुषमा बी को भी बता दें, और मैं अभी हूँ, और मेरे पीछे वापस यहीं तक रहना होगा। श्याम बाबू ने मेरे घोड़े की लगाम थाम ली, और मैं मोहतात कदमों से आगे बढ़ गई। मैं पैंट, बूट और शर्ट पहने हुए थी, और पैरों में करीब सोल थे, और फीतों वाले ये नरम शूज़ थे, और जिन्हें यानी तला रबड़ से मिलते जुलते मटेरियल का था, और इन्हें पहनकर तेज़ी से हरकत करना और भागना मुमकिन था। इसके अलावा पंजों के बल एहतियात से चला जाता तो जूतों की आवाज़ भी ना होती, और बूट शर्ट के नीचे बुलेट प्रूफ जैकेट थी, और किसी भी तरफ से फायर होने की सूरत में मुझे अपनी गर्दन, चेहरा और सर बचाना था। और मेरी बूट शर्ट जेब में एक हथियार था, खामोश मौत, और जहर में भुजी हुई 24 फौलादी सुइयाँ मेरे नज़दीक फौजी जासूसों के लिए काफ़ी थीं, और मेरे अंदाजे के मुताबिक उनकी तादाद इससे ज़्यादा मुमकिन न थी। मैंने कभी किसी का नाहक खून नहीं बहाया था, और न अब कोई ऐसा इरादा रखती थी, और वो जो हक़ बातिल की जंग से बेखबर थे और मेरी नज़र में बेकसूर ही थे, और आखिर वो भी तो किसी के बाप, भाई, बेटे या शोहर होंगे, और उनके लिए भी कोई कहीं दुआ कर रहा होगा कि बेखैरियत और ज़िंदा सलामत घर वापस आ जाएं। और वह किसी भी मज़हब व मिल्लत से ताल्लुक़ रखते हों तो अल्लाह ही के बंदे। और कोई माँ अपने बेटे की वापसी के लिए मुंतज़िर होगी, और किसी बाप के लब पे हरफ दुआ होगा, और कोई बहन अपने भाई की राह देखती होगी, और किसी सुहागन की दिल की धड़कनें ना हमवार होंगी, और वह भी इस वक्त शायद जाग रही हो, और कहीं वो बच्चे जो अपने बाप के सीने फंसे लग कर सोने के आदी हों और करवटें बदल रहे होंगे। यही सब कुछ सोचती में बढ़ती जा रही थी, और इतराफ़ पर मेरी नज़र थी, और उसी के साथ रास्ते की निशानियां भी अपने ज़हन में महफूज कर रही थी कि लौट कर वहीं पहुंच सकूं जहां से चली थी। दुश्मन की नकलो हरकत का अंदाज़ा किसी बुलंद जगह से लगाया जा सकता है, और उस ख्याल के तहत चलते चलते मैंने इधर उधर निगाह दौड़ाई, और कुछ फासले पर दाएं जनब मुझे एक बुलंद चट्टान दिखाई दे गई, और करीब पहुंचकर मैंने जायजा लिया तो उस चट्टान पर चढ़ना मुश्किल नहीं था, और मैं तो बचपन से ऐसे ही खेल खेलती आई थी। तो मैं उस चट्टान पर चढ़ने लगी, और चट्टान का ऊपरी हिस्सा कदरे आगे निकला हुआ था, और मैं अगर उस हिस्से तक पहुंच जाती तो फिर चट्टान के ऊपर जाना और बहुत आसान हो जाता, और चट्टान में मौजूद दरारों और उभरे हुए पत्थरों पर कदम जमाकर मैं अपने जिस्म को समेटती, और जिस्त भर के ऊपर निकले हुए हिस्से को दोनों हाथों से पकड़ लेती, और ऐसी सूरत में मेरा जिस्म चट्टान से लटक जाता,
और जिस्म का सारा वजन हाथों पर होता, और फिर मैं धीरे धीरे ऊपर उठती और चट्टान पर चढ़ जाती। ये सब कुछ सोचकर मैंने पहले सोच लिया था, और इस वक्त मुझे हरगिज ये इल्म नहीं था कि मैंने जो कुछ सोचा है उस पर अमल करने की नौबत नहीं आएगी। उसका यकीन मुझे तब हुआ कि जब मैं जिस्त भरने वाली थी, और मैं जिस्त भरते भरते रुक गई, और मेरी नज़र में यह कोई इत्तेफाक नहीं था कि जहाँ खून के प्यासे मौजूद थे और मैं वहाँ आ गई थी, और उसमें मेरी कोशिश को कोई दखल नहीं था। यकीनन खैर की कुव्वतों ने मुझे वहाँ तक पहुँचाया था, और वो आवाज़ें 3 अफराद की थीं जिन्हें मैं अलग अलग पहचान सकती थी। जनूबी हिंद में बोली जाने वाली ज़ुबानों में से वो एक ज़ुबान कंटर में बातें कर रहे थे। अगवा तो चला गया और हम तीनों को यहाँ फजूल ही छोड़ गया, और एक शख्स की आवाज़ सुनाई दी, और कंटर ज़ुबान में अगवा के मानी रहनुमा या पार्टी लीडर के हैं। अनाजी, बस अब आज की रात ही तो गुजारना है, और कल सुबह हम मिडकीरी के लिए रवाना हो जाएंगे। आप सो जाएं, हम जाग रहे हैं। और दूसरे शख्स की आवाज़ उभरी, हम तो दिन में चंद घंटों भी नहीं सो लिए थे, और आपने तो घड़ी भर भी आराम नहीं किया। बात आराम की नहीं और ये सोचने की है कि हमारा अगवा खुद यहाँ क्यों नहीं रुका, और भोंपा जी का यही हुक्म होगा कि यह क़याम आराइश तीसरे शख्स की थी। मान लिया, मगर ये भी तो सोचो कि भोंपा जी किसी शख्स को देखते ही गोली मारने का हुक्म दे सकते हैं। ये सोचना हमारा काम नहीं, बड़ों का काम है। हुक्म तो हुक्म ही होता है। आना जी, और पहले शख्स की आवाज़ आई, और हम ठहरे हुक्म के बंदे। हमें अपने बड़ों का हुक्म मानना ही पड़ेगा, और आप इसे गलत समझें। सही बड़े अफसर जो भी कह दें और अपनी जगह अटल है। अगवा कह दे और हमारा हथियार डाल दो तो हथियार डालना ही पड़ेगा। और फिर ये भी तो सोचे कि देखते ही गोली मारने का हुक्म क्यों दिया गया। ये हमारा सरहदी इलाका है, और गैर इरादी तौर पर रियासत की सरहद अबूर करके आने वाला हमारा दोस्त तो नहीं हो सकता। तो फिर किसी दुश्मन को गोली मारना भी ठीक है। कौन दोस्त है और कौन दुश्मन, इस बात को रहने दो। और ये अल्फाज उस शख्स के थे जिसे यानी भाई साहब कहा जा रहा था, और लोग तो खुद अपने दुश्मन हो जाते हैं और उन्हें खबर नहीं होती। फिर भी जो हुक्म देकर गया है वही होगा, वही हो, और मुझे इस पर कोई एतराज़ नहीं। तुम कहते हो तो मैं सो जाता हूँ, और इधर से कोई गुजरे तो देखना तो गोली मार देना, और सोचने समझने की ज़रूरत भी क्या है। और हमें इसलिए तो पाला गया है, और आदमी को आदमी नहीं शिकार समझें। और आखिरी अल्फाज अदा करते हुए उसके लहजे में बड़ी तरक्की थी, और उसके बाद कोई भी कुछ नहीं बोला, और सन्नाटा छा गया। और मैं उस चट्टान से नीचे उतर आई, और उससे गुजरना गोया मौत को दावत देना था। सूरत हाल पूरी तरह वाज़ेह हो चुकी थी, और बात सिर्फ एक ही थी, और फिर वो तीनों मिडकीरी लौट जाते, और नक्शे के मुताबिक हमें उसी रास्ते से आगे बढ़ना था। और मेरे लिए यह भी मुमकिन था कि आज रात भी रायगा ना जाने देती, और उसके लिए उन तीनों का खून बहाना पड़ता, और उस पर मैं तैयार नहीं थी। सो वापस वहीं पहुंच गई जहां अपने साथियों को छोड़ा था। हमें फिर उसी गार में वापस चलना है जहां से सफ़र शुरू किया है, और मैंने शियाम बाबू से सरगोशी की और अपने घोड़े की लगाम थाम ली, और वापसी का सफ़र शुरू हो गया। और किसी ने मुझसे कोई सवाल नहीं किया, और हम मतलूबा गार तक पहुंचे तो वहाँ कोई नहीं था। सादक और अशरफ जा चुके थे, और हम एक चटाई बिछाकर बैठ गए। किरण जी, आप जितनी तेज़ी से आगे बढ़ती हैं उतनी ही तेज़ी से पीछे हटने में भी कमाल करती है। हद अदब में रहने के बावजूद आदर मुझ पर फिक्रा चुस्त करने से बाज ना आया। अहले कमाल तो अहले कमाल होते हैं पिंडर जी, और जंग जीतने के लिए हमेशा आगे बढ़ते रहना ही सौदा नहीं होता, और कभी कभी पीछे हटकर वार करना पड़ता है। लेकिन ये बात शायद आपकी समझ में ना आ सके। हाँ, बाबू इस बात को समझ सकते हैं तो उन्हीं को समझा दीजिए, और इससे बहाने मेरा भी कुछ भला हो जाएगा। आदल बोला, और बहरहाल वापसी का सबब जानना चाहता था। कल से हम चाहे दिन के वक्त सफ़र करें या रात को, हमें कोई खतरा नहीं होगा। और मैंने फिर जो कुछ सुना था बता दिया। ठीक है किरण जी, इस तरह हमारा सफ़र भी महफूज हो जाएगा, और हम आराम भी कर लेंगे। शियाम बाबू ने मेरी तजवीज़ से इत्तफाक किया, और फिर गार का दहाना बंद कर दिया गया, और उसके लिए बड़े बड़े पत्थर इस्तेमाल किए गए, और घोड़ों के साथ बंधा हुआ सामान खोल लिया गया, और सोने के लिए बिस्तर बिछा लिए गए। कविता मेरी बाएं जानब और आदल दाएं जानब था, और उसी तरफ ज़रा फासले से शियाम बाबू का बिस्तर था। और बम्बई से चलकर रियासत कोडक की हदूद में दाखिल होते तक हम सभी खासे थक चुके थे, और इसलिए सोने में ज़्यादा देर नहीं लगी। अगले रोज़ शाम के वक्त हमने मिडकीरी की तरफ सफ़र शुरू कर दिया, और मैं अब पूरी तरह मुतमिन थी। और कविता के मैंने दानिस्ता अपने आगे बिठाया था ताकि तेज़ रफ्तारी से घोड़ा दौड़ा सकूं, और दूसरे घोड़े पर शियाम बाबू और आदल थे।
عرصہ دراز کے بعد مجھے پہاڑوں کے درمیان گھوڑ سواری کا موقع ملا تو میرے اندر ایک عجیب سی ترنگ تھی، اور یہی ترنگ مجھے جیسے ہوا کے دوش پر اڑائے لیے جا رہی تھی۔ اپنے گھوڑے کی پسلیوں پر میرے دونوں گھٹنوں کا دباؤ بڑھتا ہی جا رہا تھا، اور میں جیسے ہوش میں آ گئی، اور شیام بابو میری ترنگ کا ساتھ نہیں دے سکا تھا اور وہ بہت پیچھے رہ گیا تھا۔ میں نے آہستہ آہستہ گھوڑے کی رفتار کم کر دی، اور گھوڑا سر پٹ دوڑتے دوڑتے دل کی چال پر آ گیا، اور شیام بابو کو میرے ساتھ ساتھ رہنا تھا، اور وہ ایسا نہ کرتا تو پہاڑوں میں بھٹک جاتا۔ اور گھوڑے کی پشت پر بیٹھ کر کچھ دیر کو جیسے میں سب کچھ بھول گئی تھی، اور مجھے یوں لگا کہ میں بلند پہاڑوں کے درمیان محو سفر ہوں، اور کویتا نے بر وقت مجھے چونکا دیا تھا۔ شیام بابو کو مجھ تک پہنچنے میں خاصی دیر لگی، اور اتنی تیزی سے گھوڑا نہیں دوڑا سکتا کرن جی، شیام بابو نے مجھ سے کہا، اور مجھے بھی اپنی ہڈی پسلیاں عزیز ہیں خاتون محترم۔ عادل نے بھی گرا میں گرا لگائی، اور کسی کھاڑی یا گہری کھائی میں جا گرا تو آپ ہی ڈھونڈتی پھریں گی۔ بھگوان نہ کرے پنڈت جی کہ ایسا ہو، ورنہ تو بیچاری جلالی والی جیتے جی مر جائے گی۔ اور میں ہنس کر بولی، اور یہ سشما بھی آپ ہی کی طرح ڈر رہی تھی، اور اس لیے مجھے گھوڑے کو سر پہ دوڑانے سے روک دیا۔ خیر اب میں زیادہ تیز نہیں چلوں گی۔ اور عادل موقع محل دیکھ کر میری فکرہ بازی سہ گیا، اور اگر شیام بابو ساتھ نہ ہوتا تو یقیناً وہ جوابی کارروائی سے گریز نہ کرتا۔ رات کو 9 بجے کے قریب ہم نے ایک پہاڑی کے دامن میں پڑاؤ ڈالا، اور پھر کھانا کھا کر دوبارہ چل دیے۔ اب آگے آگے میرا گھوڑا تھا، اور پیچھے شیام بابو چل رہا تھا، اور نصف شب تک سفر کے بعد میں نے آرام کرنے کی خاطر ایک غار تلاش کر لیا، اور یہ غار چھوٹا ہونے کے باوجود محفوظ تھا۔ اپنے گھوڑے ہمیں دوسرے قریبی غار میں باندھنا پڑے، اور اگر یہی حالت رہی تو شاید میں دن اور رات کا فرق بھول جاؤں گا کرن جی۔ عادل مخان نے مجھے مخاطب کیا، اور وہ اپنا بستر بچھا رہا تھا۔ پنڈت جی، بے ظاہر تو مجھے آپ کی حالت ٹھیک لگتی ہے، اور اندر کا حال معلوم نہیں۔ اور میں مسکرائی۔ کہاں تک دن گزرا اور کہاں رات گئی، اور اسے فرق کیا پڑتا ہے؟ اس فرق کو تو بھول ہی جاؤ تو اچھا ہے، اور کچھ باتوں کا بھول جانا ہی بہتر ہوتا ہے۔ کیوں شیام بابو؟ میں نے تصدیق چاہی، اور اس سے پہلے کہ شیام بابو میری تائید میں کچھ کہتا، عادل بول اٹھا، اور کچھ تو بتا دیجیے کہ یہی رہے گا کیا؟ ہاں، میں نے جواب دیا، اور شام سے آدھی رات تک سفر اور بھی آرام۔ اور یہ بالکل مناسب ہے، شیام بابو نے کہا، اور وہ بیوی بستر پر بچھا چکا تھا۔ کویتا نے بمبئی سے چلتے وقت حصار کھینچا تھا، اور جس کی مدت 24 گھنٹے تھی، اور یہ مدت ختم ہونے سے پہلے ہی اس نے میری ایما پر دوبارہ شام کے وقت حصار کے منتر پڑھ لیے تھے، اور سفر کے دوران شام سے اسے یہی کرنا تھا تاکہ ہم چندر مون کی نظروں سے اجل رہ سکیں، اور عادل اور شیام بابو اس سے بے خبر تھے۔ دوسرے روز دوپہر ہوتے ہوتے ہم جاگ اٹھے، اور اب بھی ہمارے پاس بھنے ہوئے گوشت کے پارچے تھے، اور جن سے پیٹ کی آگ بجھائی جا سکتی تھی۔ کویتا ایک پہاڑی چشمے سے پانی بھر لائی اور کھانا شروع کر دیا۔ شیام بابو اور کویتا دونوں ہی کی گوشت خوری پر اعتراض نہیں تھا، اور کھانا کھا کے وقت پر ہم نے مزید آرام کیا، اور پھر وہاں سے روانہ ہو گئے۔ کویتا حفاظتی حصار کھینچ چکی تھی، اور سفر کے دوران ناشتہ ہمیں گول کرنا پڑا، اور دوپہر کا کھانا اور ناشتہ گویا ساتھ ساتھ ہی تھا۔ اس مرتبہ شیام بابو نے بھی اپنے گھوڑے کو ذرا تیزی سے بگھایا، اور نتیجہ ہم نصف شب کے قریب مڈکیری کے نواح میں پہنچ گئے، اور نقشے کے مطابق مڈکیری اب صرف 15 میل کی مسافت پر تھا، اور سمت سفر اب تک درست رہی تھی۔ جب ہم ایک غار میں پناہ لے چکے تو شیام بابو نے تجویز پیش کی، کرن جی، اب ہم ریاست دارالحکومت پہنچنے والے ہیں، اور ہمیں فرزندان کاویری سے رابطہ قائم کر لینا چاہیے، اور مڈکیری میں ہم اجنبی ہوں گے، اور ہمیں راجہ چک ویر اور اس کی سازشی وزیر اعظم لنگڑے بسودیا کی نظروں سے بچے رہنا ہوگا۔ اور آپ کی نظر میں رابطے کی کیا صورت ہے؟ میں نے دریافت کیا۔ سوامی جی یا انتیٹا تک یہ پیغام پہنچا دیا جائے کہ ہم یہاں آ چکے ہیں، شیام بابو نے جواب دیا، اور اس کی ذمہ داری میں قبول کرنے کو تیار ہوں۔ آپ کا حکم ہو تو میں کچھ گھنٹے آرام کرنے کے بعد تنہا روانہ ہو جاؤں، اور میں یہاں سے صبح 5 بجے تک چلا تو آدھے گھنٹے میں انجہانی راجہ رنجماری کی سبھا میں پہنچ جاؤں گا، اور انجمن فرزندان کاویری کے سربراہ سوامی جی کا قیام وہیں ہے۔ اور کیا یہ بھی ممکن ہے کہ سوامی جی کے بجائے آپ انجمن کے سابق نوجوان سربراہ اتیٹا سے رابطہ کر لیں؟ اور میں کچھ سوچتے ہوئے بولی، جی ہاں، ایسا بھی ہو سکتا ہے، شیام بابو نے کہا، اور اتیٹا کی سکونت مڈکیری کے راج بھون میں سے دور نہیں، اور میں وہاں بھی جا چکا ہوں۔ اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، اتیٹا کے بارے میں آپ نے بتایا تھا کہ وہ راج بھون کے کسی اہم عہدے پر فائز ہے، اور دوم یہ کہ وہ وزیر دفاع کا بھونپا کا بھانجا ہے،
اور موجودہ صورتحال میں ہمارے لیے وہ شخص زیادہ اہم ہے جو راج بھون سے کسی نہ کسی طور پر وابستہ ہو، اور اتیٹا راج بھون کے محافظ دستے کا نگران ہے، شری یام بابو نے بتایا، اور پھر کچھ کہنے لگا۔ تو پھر میں والی جی سے نہیں ملتا اور اتیٹا سے رابطہ قائم کر لیتا ہوں، اور مڈکیری میں قدم رکھنے سے پہلے میں اتیٹا سے ملاقات کرنا چاہتی ہوں، اور آپ اتیٹا کو اپنے ساتھ یہاں تک لا سکتے ہیں، اور بالکل، اور جب وہ میری دعوت پر بمبئی آ سکتا ہے تو یہاں آنے میں کیا اعتراض ہو سکتا ہے، اور وہ پرجوش اور پرخلوص نوجوان ہے، آپ اسے مل کر خوش ہوں گی۔ ٹھیک ہے، اب صبح 5 بجے یہاں سے مڈکیری چلے جائیں، اور میں نے اپنی رضامندی ظاہر کر دی، اور آپ کو 7 بجے تک واپس آ جانا چاہیے، اور اس سے پہلے ہی واپسی کا امکان ہے۔ مڈکیری جانے اور آنے میں گھنٹے بھر سے زیادہ نہیں لگے گا، اور میں نے احتیاطاً مزید 1 گھنٹے کا مارجن دے دیا، اور جانے سے پہلے جگا دیجیے گا مجھے۔ شری یام بابو نے اقرار میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، بہتر۔ اور پھر ہم چاروں ہی اپنے اپنے بستروں پر لیٹ گئے، اور مڈگیری کے نواب میں پہنچنے کے بعد مجھے بے چینی سی محسوس ہونے لگی، اور اسی کا سبب غالباً یہ تھا کہ وہاں میرا دشمن سیان بھی موجود تھا، اور پر اسرار شیطانی قوتوں کا مالک چندر موہن بھی۔ پر اسرار تجربات کے دوران ان دونوں ہی کو میں نے خود بند آنکھوں سے دیکھ چکی تھی۔ انگریز حکومت ریاست کے خلاف سازش کا کیا جال بن رہی تھی، اور اسے قطعی نظر یہاں آنے میں میرے ذاتی معاملے کو زیادہ دخل تھا۔ اتیٹا سے مل کر میں اپنے دشمنوں کے متعلق بہت کچھ معلوم کر سکتی تھی، اور اسے یہاں بلانے کا مقصد یہی تھا کہ میں اپنے دشمنوں کو سنبھلنے کا موقع دیے بغیر اچانک ان پر ٹوٹ پڑنا چاہتی تھی۔ اور میرے تینوں ساتھی سو گئے، مگر مجھے نیند نہیں آئی، اور پلکیں جھپکی ہوں گی کہ شری یام بابو نے مجھے جگا دیا، اور وہ روانگی کے لیے تیار تھا، اور عادل بھی جاگ اٹھا، اور کویتا البتہ بے خبر سوتی رہی، اور میں اور عادل شری یام بابو کو رخصت کرنے کے لیے غار سے باہر آ گئے۔ پہاڑوں کے درمیان صبح کا وہ منظر بہت حسین تھا، اور شری یام بابو گھوڑے پر بیٹھ کر مڈگیری کی پر روانہ ہو گیا تو میں غار کی جانب پلٹنے کی بجائے ایک چٹان پر چڑھ گئی، اور عادل مجھے تیزی کے ساتھ اس چٹان پر چڑھتے دیکھتا رہ گیا، اور وہ چٹان کے نیچے کھڑا تھا۔ تم بھی اوپر آ جاؤ نا، میں ہنس کر بولی، اور یہاں سے بہت دور دور تک نظر آ رہا ہے، اور میں نے ایک سرکس میں نوکری کرنا چاہی تھی لیکن کامیابی نہیں ہوئی۔ عادل نے منہ اوپر کر کے بلند آواز میں کہا، اور پھر بھی تمہاری خوشنودی کے لیے بندر بننے کی کوشش کر سکتا ہوں۔ شری یام کے جاتے ہوئے پہلے کی طرح چہکنے لگا تھا، اور کچھ دیر میں وہ بھی چٹان پر چڑھ آیا۔ تم بالکل غلط کہہ رہے تھے کہ تمہیں سرکس میں نوکری نہیں مل سکی، اور اس کے علاوہ بندر میں تم میں اعلیٰ تر صلاحیتیں موجود ہیں، میں نے اسے چھیڑا۔ اور میں ترقی معکوس کا قائل نہیں، سنتے ہی کہ آدمی پہلے ہی بندر ہی تھا، اور یہ ایک بندر ہی کا خیال ہے یا نظریہ تھا جو مسترد کیا جا چکا ہے، اور سنی سنائی باتوں کو بطور سند استعمال نہ کرو، اور اگر کسی بندر کو یہ معلوم ہو گیا کہ تم نے بندر ہونے کا دعویٰ کیا ہے تو برا مان جائے گا۔ اور میں یہ کہہ کر زور سے ہنس پڑی۔ ذرا دیر بعد ہم دونوں غار میں واپس آ گئے، اور کویتا اب تک سو رہی تھی، اور 6:30 بجے تک بابو واپس آ گیا، اور وہ اپنے ساتھ نوجوان اتیٹا کو بھی لے آیا، اور اتیٹا کے سامنے سرونے چہرے سے اور دلیری کا اظہار ہوتا تھا، اور کالی روشن آنکھیں، ستواں ناک، اور 20واں چہرہ اور جسم گٹھا ہوا۔ اتیٹا، اس کی عمر 25 سال سے کچھ کم ہی لگتی تھی، اور یہ ہیں کرن کماری جی جن کے بارے میں نے تمہیں بتایا تھا، اور شری یام بابو نے اتیٹا سے میرا تعارف کرایا۔ اتیٹا مروب سا نظر آیا، اور اس نے دونوں ہاتھ جوڑ کر میرے آگے سر جھکا دیا اور بولا، پرنام جی۔ اور میں نے کنٹر زبان ہی میں اتیٹا سے گفتگو شروع کی تو اس کے چہرے پر ایک خوشگوار حیرت آ گئی، اور میں بڑی روانی سے کوڈک میں بولی جانے والی زبان بول رہی تھی، اور ذرا سی دیر میں اتیٹا کی جھجک ختم ہو گئی، اور میں نے اس کی ریاست کی اندرونی سیاسی صورتحال پر بات کی۔ کماری جی، آپ تو بالکل اپنی لگتی ہیں، اور اتیٹا نے اظہار مسرت کیا، اور مجھے خبر نہیں تھی کہ ہم لوگوں سے زیادہ ہمارے بارے میں جانتی ہوں گی، اور پھر بھی مجھے بہت سی باتوں کا علم نہیں، اور ویسے جاننے کے لیے میں نے تمہیں بلایا ہے۔ اور میں محتاط الفاظ میں نے کہا، اور پھر سب سے پہلا سوال اپنے دشمن سیان کے متعلق کیا، اور وہ بڑے بڑے بالوں والا اب راج بھون میں نہیں رہتا، اتیٹا نے جواب دیا۔ پھر وہ کہاں چلا گیا؟ اور میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ کئی دن ہو گئے ہیں اسے امرت ناتھ جی کے مندر گئے ہوئے، اور وہ اب بڑے مہاراج کے ساتھ مندر ہی کے ایک حصے میں رہتا ہے، اور کم ہی باہر نکلتا ہے۔ اس کے بارے میں سنا یہ گیا ہے کہ خود بڑے مہاراج نے راجا جی سے بات کی تھی، اور بڑے مہاراج نے راجا جی سے کہا تھا کہ ان کا مہمان راج بھون میں محفوظ نہیں، اور سو وہ اسے اپنے ساتھ مندر لے جا رہے ہیں۔ امرت ناتھ کا مندر کہاں ہے؟ میں نے معلوم کیا۔ مڈکیری کے شمال میں جو پہاڑ ہے، امرت ناتھ جی کا مندر وہی ہے،
और मंदिर जरा बुलंदी पर है और उस तक पहुंचने के लिए पत्थरों को काट कर सीढ़ियां बनाई गई हैं और उसी पहाड़ के दामन में भगवती ने अपना आश्रम बना रखा है और बड़ी नेक और पारसा औरत है और मिडकीरी के लोग उसे आशीर्वाद लेने जाते हैं और वह दुआ करती है और मरीज अच्छे हो जाते हैं। अतीटा ने एक और नई बात बताई और भगवती किसी से कोई नजराना भी कबूल नहीं करती और मिडकीरी की अवाम उसकी बड़ी इज्जत करते हैं। मैं इस वक्त सयान और चंद्रमोहन के बारे में मजीद गुफ्तगू करना चाहती थी और इसलिए भगवती के जिक्र से गुरेज किया और उसके बावजूद वो औरत मुझे पूरी इसरार मालूम हुई। बज़ाहिर उसकी जो शोहरत थी, आवाम में उसने जो मकबूलियत हासिल की थी, उसके पीछे कोई ना कोई राज ज़रूर था और स्वामी जी के बाद ये औरत मुझे मुश्तबा महसूस हुई। मुख्तलिफ सवालात के नतीजे में मुझे चंद्रमोहन और सयान के मतलब उससे ज़्यादा कुछ मालूम ना हो सका और जितना मैं पहले से जानती थी। सयान को इस रियासत में अभी दोहरा तहफ़्फ़ुज़ हासिल था और एक तरफ तो वो रियासत के राजा चक्रवीर का मेहमान था और दूसरी जन्म चंद्रमोहन उसे पनाह दिए हुए था और मिडकीरी आकर भी सूरत हाल वही थी जो दिल्ली में थी। सयान पर हाथ डालना यहाँ भी आसान नहीं था और उसके बावजूद मेरे लिए ये भी बहुत ज़रूरी था कि मैं अपने दुश्मन का सुराग लगाने में कामयाब रही थी। अब तो इतना तो था कि मैं अंधेरे में नहीं थी। शिमाल में जो पहाड़ है जिसके बारे में तुमने अभी बताया है कि वहीं अमरनाथ का मंदिर है और उसी के दामन में भगवती का आश्रम है, तो क्या उसी पहाड़ के दामन में हमारी सुकूनत का बंदोबस्त भी मुमकिन है? और मैंने अतीटा से सवाल किया। क्यों नहीं कुमारी जी, ऐसा मुमकिन है, पर आपको वहां ज्यादा आराम नहीं मिल सकेगा। अगर आप मिडकीरी की आबादी में रहें तो ज्यादा बेहतर है और हमारी अंजुमन के कई महफूज घर ऐसे हैं जहां आपको हर तरह का आराम भी मिलेगा और कोई खतरा भी नहीं होगा। अगर हम खतरों से डरते तो फिर यहाँ क्यों आते? उसकी परवाह ना करो और ये बताओ कि कब तक वहाँ हमारी सुकूनत का बंदोबस्त हो सकता है। आज का दिन तो लग ही जाएगा, अतीटा ने जवाब दिया। और पहाड़ी के करीब पिछले वक्तों में एक धर्मशाला थी जिसका बड़ा हिस्सा टूट फूट गया है और एक आध कमरा ही ठीक हालत में होगा और वहाँ हम अपनी अंजुमन के माहाना इजलास भी करते रहते हैं और उस जगह को रहने के काबिल भी बनाया जा सकता है। माहाना अजलास कहीं और भी कर सकते हैं और मैंने वहाँ रहने पर रजामंदी ज़ाहिर कर दी और मेरा मकसद दरअसल अपने दुश्मन से करीब रहना था और उसके अलावा मैं अंजुमन फरजंदाने कावेरी से भी दूर दूर रहना चाहती थी। आज रात को मैं फिर आऊँगा और आप लोगों को साथ ले जाऊँगा और यहाँ से मिडकीरी की आबादी में दाखिल हुए बगैर उस शिकस्ता धर्मशाला तक पहुँचा जा सकता है। अपने दुश्मन के बारे में ज़रूरी मालूमात हासिल करने के बाद मुझे उस मजलूम मजबूर औरत का ख्याल आया जो राजभून ही के एक हिस्से में रह कैद थी और वही औरत देवमा जो राजा चक्रवीर की बहन थी। फिर मैंने अतीटा से पूछा कि क्या तुम्हें मालूम है कि राजा चक्रवीर की बहन देवमा राजभून की कैद में है? और मेरे इस सवाल पर अतीटा चौंक उठा और बोला, और ये बात तो चंद ही लोगों को मालूम है और मुझे हैरत है कि आप देवमा को कैसे जानती हैं। अगर देवमा को आप जानती हैं तो फिर चैन बिस्सू से वाकफ होंगी और मिडकीरी की जनता को ये तो खबर है कि देवमा जी राजमहल में हैं और पर उसे पता नहीं कि राजा ने उन्हें कैदी बना रखा है। और यहाँ आने से पहले मैंने रियासत और राजभून से मुतल्लक बहुत सी मालूमात हासिल की थी और मेरी मालूमात के ज़राए से कतई नज़र इसमें कोई शक नहीं कि देवमा एक मजलूम औरत है। और वहीं पर बिस्सू यानी देवमा के शोहर और खुद देवमा के बारे में ज़्यादा नहीं जानती, पर अब जानना ज़रूर चाहती हूँ। क्या इस सिलसिले में कुछ बता सकते हो? कुमारी जी, आपका यह कहना मेरे दिल की आवाज़ है कि देवमा पर जुल्म हो रहा है। और अतीटा पुरजोश आवाज़ में बोला, मगर ये मामला हमारे इख्तियार से बाहर की बात है और राजघराने के ज़ाती मामलात में हम मुदाखलत नहीं कर सकते। और फिर अतीटा मुझे चैन बिस्सू और देवमा के बारे में तफसील से बताने लगा। राजा चक्रवीर के अय्यारो अय्याश और साजिशी बाप ने अपनी बेटी देवमा की शादी कोडक ही के एक मकामी नौजवान से की थी और शादी का पसे मंदिर भी सियासी ही था और लंग राज मकामी लोगों से रिश्ते नाश्ते करके अपने इक़्तिदार को मजबूत कर रहा था। और उसका एक बेटा और एक बेटी थी, यानी चक्रवीर और देवमा। और चक्रवीर की शादी भी उसने कोडक ही के एक मकामी लोगों में की और बेटी देवमा का रिश्ता भी मकामी बाशिंदों में एक कोडकी नौजवान से किया। और इस तरह गोए अय्यार लंगराज ने मकामी बाशिंदों को अपने हक में अस्तवार कर लिया था और वो आइंदा राजघराने के लिए खतरा साबित ना होते। लंगराज ने अपनी बेटी देवमा को शहर अपोंग का राजमहल भी दे दिया और अपंगोल के महल का खजाना भरा हुआ था। और अपनी बेटी देवमा और दामाद चैन बिस्सू को लंगराज ने
मिडकीरी से दूर अपोंगोल में रखा और लंगराज हफ्ते में 2-3 बार खुद अपोंगोल जाता और बेटी दामाद को भी मिडकीरी बुलवाता रहता। और इस तरह लंगराज ने उन्हें तमाम तर ऐशो आराम फराहम किया। और मरते वक्त उसने अपने बेटे चकवीर से कहा कि छोटी बहन को प्यार से रखना, और फिर बहू को पास बुलाकर बोला, और बेटी मैंने तेरे लिए किसी चीज की कमी नहीं रखी, और इसलिए तेरी नंद को जो कुछ दिया है उसे छूने की जरूरत नहीं। और बहू गोरमा ने जवाब दिया कि आप चिंता ना करें, आपकी बेटी के सुख को मैं अपना सुख जानूंगी। और चैन बसु अगर राजा लंगराज का दामाद ना बनता तो शायद एक आम आदमी की हैसियत से पुरसकून जिंदगी गुजारता, लेकिन उसकी बदकिस्मती के लंगराज की निगाह उस पर पड़ी और उसे दामाद बना लिया, और वह खुद उसी सबब अहम तस्वर करने लगा और खुश फहमी का शिकार हो गया। दूसरों के साथ सख्ती का बर्ताव करने वाला रंगराज अपनी बेटी की वजह से दामाद का लिहाज करता और उसके बरअक्स अपने बेटे को नालायक, कमीना, अहमक वगैरह कहकर गालियां देता। और कभी वो चकवीर से कहता कि वो राजमहल में जन्म ला लेकर भी चैन बिस्सू कितनी शाइस्तगी से रहता है, और उसकी टांग के नीचे से निकल जा, और शायद इस तरह तुझे कुछ अकल आ जाए। और ऐसी बातें सुनकर चैन बिस्सू ये समझने लगा कि उसकी खूबियों से मुतासर होकर तारीफ हो रही है, और उसे यह कहते भी सुना गया कि शायद राजा लंगराज बेटे की जगह उसे ही राजा बना दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और लंगराज के मरने पर चकवीर ही राजा बना। शुक्रिया अतीता, तुमसे फिर गुफ्तगू रहेगी, और आज रात में तुम्हारी आमद का इंतजार करूंगी, और तुमसे मिलकर वाकई बहुत खुशी हुई, मैं मुस्कुराकर बोली। और उसे मैं अपनी सौभाग्य समझता हूँ। अतीता ने दोनों हाथ जोड़कर मुझे एहतराम दिया और उठकर खड़ा हुआ, और फिर वो चला गया। श्याम बाबू कंटर जुबान समझता था, मगर आदल को उससे ज्यादा शुद्ध बुद्ध नहीं थी, और न कविता के लिए ये जुबान समझना आसान था। और मैंने इसीलिए मुख्तसरन आदल को अतीता से होने वाली गुफ्तगू से आगाह कर दिया। और मैंने इस दौरान बतौर ख़ास ये बात महसूस की कि कविता इंतहाई खौफजदा है, और आदल और मेरे दरमियान होने वाली गुफ्तगू को उसने बड़ी तवज्जो से सुना, और उसे मेरे आइंदा इक़दामात का इल्म हो गया था। और कविता के खौफ की वजह यही थी कि मैं ये बात समझ रही थी कि उसे एतमाद में लेना और तसल्ली देना ज़रूरी था, लेकिन श्याम बाबू और आदल के सामने यह मुमकिन नहीं था, और मैं इसीलिए उसे चहलकदमी के बहाने गाड़ से बाहर ले आई। मेरे इस्तफार पर बाहर आते ही वह बोल उठी, कुमारी जी, आप आग से ना खेलें, और मुझे अपने जीवन की कोई ऐसी चिंता नहीं, पर आपको कुछ हो गया तो ये सहन करना मुझे दूभर हो जाएगा, और मिडकीरी ही में रहना है तो कहीं और रह लें, और इस मंदिर से तो वह दूर जहाँ चंद्र मोहन का ठिकाना है, और मैं उसे 2-2 हाथ करने तो यहाँ आई हूँ पगली। और मैंने उसे नरमी से समझाया, और ना वह तुम्हारा कुछ बिगाड़ सकता है, और ना उससे मुझे कुछ नुकसान पहुँचाने की हिम्मत है, और तुम्हें उससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं। और फिर ये क्यों बोल रही हो कि हम उसकी नज़रों से उज्जल रहेंगे? ये तो ठीक है कुमारी जी, पर मेरा मन बेचैन है। और कविता की आवाज़ में अब भी खौफ की लरज़श थी। अचानक मैंने चंद्रमोहन की आवाज़ सुनकर उछल पड़ी, और वो मुझे से मुखातब था। ऐ माबला, कविता की बात मान ले, ये ठीक ही कह रही है। और चंद्रमोहन मेरी नज़रों से उज्जल था, मगर उसकी आवाज़ मैं सुन रही थी, और गुस्से की शदीद लहर मेरे पूरे वजूद में दौड़ गई, और उसी ज़हरे असर में चीख उठी, और बुज़दिल भगोड़े सामने आ छुप क्यों रहा है मुझसे? और जवाब में चंद्रमोहन का जहरीला कहका सुनाई दिया, और फिर उसकी आवाज़ आई, तू भी तो मुझसे डर कर हिसार में छुपी बैठी है कि तुझे देख ना सकूं। खैर, अब तू मेरे पीछे पीछे यहाँ तक आ ही गई है तो मैं तुझे मायूस नहीं करूँगा, और तेरे दुश्मन सयान को मैंने यहाँ तेरी आमद से आगाह कर दिया है, और वो भी इस बात पर खुश है कि तेरे खरीदार अंग्रेज़ भी हैं और सयान भी, और जिससे भी तेरा दाम मिले उसी के हाथ में तुझे बेच दूंगा। लेकिन कब? और ये शायद तुझे भी खबर है, और चंपा को जो जिद है वो पहले पूरी होगी। तू मेरा इशारा समझ गई ना? और इन अल्फाज के साथ ही एक बार फिर चंद्रमोहन का जहरीला कहका गूंजा, और ऐन उसी लम्हे मैंने कविता के जिस्म का तवाज़ुन बिगड़ते देखा, और उसकी अक्ल में गहरी खाई थी, और मैं तेजी से कविता की तरफ लपकी, और उसकी ज़िंदगी खतरे में थी। उस अय्यार ने मुझे बातों में लगाकर अचानक कविता पर हमला कर दिया था, और मैं चंद्रमोहन के इस गैर मुतवक्का हमले का मकसद अच्छी तरह समझती थी। कविता को रास्ते से हटाकर वो गोया मुझे अपनी दानस्त में बेसुपर करना चाहता था, और मुझे अगर कविता तक पहुंचने में चंद लम्हे की ताखीर भी हो जाती तो वह शायद जिंदा न बचती। नजरों से उज्जवल होने के बावजूद भी चंद्रमोहन की शैतानी कवितें मेरे लिए खतरा बन गई, और ये बात हर चंद के तशवीशनाक थी, लेकिन मेरा हौसला पस्त नहीं हुआ, और चंद्रमोहन ने मुझे जो धमकी दी थी उसका भी मैंने असर कबूल नहीं किया, और ऐसी धमकियां मैं पहले भी देता आया था।
कविता को अपने हवास पर काबू पाने में ज्यादा देर नहीं लगी और मेरा जहन तेजी से काम कर रहा था और मिडकीरीज पहुंचने से पहले मैं कोई ऐसा कदम उठाना चाहती थी कि वक्ती तौर पर ही सही चंद्रमोहन चकरा कर रह जाए। और कविता को मैंने कुछ हदायत दी और फिर चंद ही लम्हे बाद मेरी नजरों से उज्जल हो गई। मैंने जो कदम उठाया था उसका रद्द अमल उसी रोज को ज़ाहिर हो जाता और राजा चक्रवीर इस सिलसिले में फौरी तौर पर मदद हासिल करने के लिए चंद्रमोहन से राब्ता कायम करता और फिर चंद्रमोहन की बेबसी काबिल दीद होती। और यही सोचती हुई मैं गार में वापस आ गई और हस्बे तवक्का मेरी तनहा वापसी पर आदल ने हैरत का इजहार किया तो मैं बोली, सुषमा को मैंने एक काम से भेजा है और यहाँ आते ही आपने काम दिखाना शुरू कर दिया। आदल ने धीमी आवाज में कहा ताकि दूर बैठा हुआ श्याम बाबू उसकी बात ना सुन सके। हम यहाँ काम दिखाने ही तो आए हैं। मैं मुस्कुराई। बस मुझे गरीब पर रहम कीजिएगा और दुनिया में अभी बहुत से काम निपटाने हैं और कहीं इससे पहले ही दी एंड ना लग जाए। दी एंड तो एक ना एक रोज लगना है और कल ना सही आज ही सही। मैं हंसी। और फिलहाल मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं कि आप तन तनहा ये शौक पूरा कर लें तो ज़्यादा बेहतर है और तुम्हारे या मेरे इरादे से कुछ नहीं होगा बल्कि सब टाट पर पड़ा रह जाएगा और जब लाल चलेगा बंजारा। और मैं हरगिज़ कोई अंजारा बंजारा नहीं, जो बंजारा या बंजारन हो वो लाल चले और मैं भला क्यों टाट फड़ा छोड़ जाऊं। और उसी वक़्त श्याम बाबू उठकर करीब आ गया और आदल का जोर बयान खामोशी में तब्दल गया। श्याम बाबू ने मुझसे कविता के बारे में मालूम किया और आदल की तरह मैं उसे भी टाल गई और मुझसे ज़्यादा कुरीदा करादी नहीं करता था और कविता को वापसी में ज़्यादा देर नहीं लगी। उसका वजूद अभी तक नादीदा था और मैं एक बार फिर गार से बाहर निकल आई ताकि तन्हाई में उससे बात कर सकूं। और गार से कुछ दूर निकल आने के बाद वह ज़ाहिर हो गई तो मैंने पूछा, काम हो गया? हाँ, उसने जवाब दिया, कोई दुश्वारी तो नहीं हुई। नहीं, सिर्फ चंद पहरेदारों को बेहोश करना पड़ा और आपकी हदायत के मुताबिक मैंने उसे पंगोल पहुंचा दिया। तो मैंने उसे अपने बारे में क्या बताया? यही कि मैं एक नेक रूह हूँ और उसे जुल्म से बचाना चाहती हूँ। और उसी के साथ मैंने उसे यह ताकीद भी कर दी कि वह पंगोल के महल से निकलने की कोशिश ना करे और महल की गिर्द में घेरा डाल दिया है ताकि चंद्रमोहन उसका सुराग न लगा सके। और कविता ने तफसील बताई। पंगोल शहर के बासी यूं भी राजा की बहन और बहनोई के वफादार हैं और मुझे ये भी मालूम हुआ कि देवमा का शोहर चैन बिस्सू भी महल में बेधड़क आता जाता है और रियासत का बागी होने के बावजूद कोई उस पर हाथ नहीं डालता। और तुम्हें आज ही शाम होने तक एक बार फिर मिडकीरी जाना है। और फिर मैं उसे समझाने लगी कि उस मर्तबा क्या करना है। राजा चक्रवीर की मजलूम बहन देवमा को मैंने कैद से रिहाई दिला दी और मेरी हदायत के मुताबिक कविता ने उसे पंगोल पहुंचा दिया था जो गोया उसका असल घर था और ये इलाका बागियों का गढ़ कहलाता। राजा और उसके कारिंदे उन लोगों को बागी कहते और वो लोग खुद को आज़ादी के सिपाही समझते और वो राजा चक्रवीर के जुल्म सितम से निजात पाने की जद्दोजहद में मसरूफ थे और उन्हें फरजंदाने कावेरी की हमायत हासिल थी। उसी शाम कविता ने मडकीरी का एक फेरा और लगाया और जो खबर लाई मेरी तवक्का के मुताबिक थी। सख्त तरीन पहरे के बावजूद राजमहल से देवमा की पुरस्कार फरार ने राजा को बुखला दिया और इस सिलसिले में पहले तो राजा ने लंगड़े बसूदिया की खबर ली और फिर उससे मशवरे पर बजाते खुद चंद्रमोहन की खिदमत में हाजिरी देने अमरतनाथ के मंदिर पहुंच गया। और चंद्रमोहन ने शाम तक देवमा का सुराग लगाने का दावा किया मगर नाकाम रहा और उससे राजा चक्रवीर का एतमाद को धचका लगा और नाकाम व नामराद मंदिर से लौट आया। अब वो बागियों के इलाके पर यलगार करने के मंसूबे बना रहा था और उसे यकीन था कि देवमा मिडकीरी से फरार होकर अब पंगोल ही पहुंची होगी। खेल शुरू हो गया था और मुझे मालूम था कि वजीर दफा भूपा अपनी ही रियासत के एक इलाके पर फौज किश्ती के लिए हरगिज आमादा नहीं होगा। रात को अतीटा वादे के मुताबिक आ गया और उसने हमें पहाड़ के दामन में मतरूक धर्मशाला तक बहिफाजत पहुंचा दिया। उस धर्मशाला के खंडरात में एक कमरा बहरहाल इस काबिल था कि जहां पर हम क़याम कर सकते और अतीटा हमें उसके बारे में पहले ही बता चुका था। उसने हमारे लिए वहां खाने पीने की अशिया का ज़ख़ीरा भी कर दिया और ये तो भूत नगरी मालूम होती है। अतीटा चला गया तो आदल ने सरगोशी की और उसने अपने बिस्तर मेरे करीब ही बिछा लिया था। खामोशी से सो जाओ वरना कोई भूत तुमसे तारफ हासिल करने की कोशिश भी कर सकता है। और मैंने धीमी आवाज़ में कहा और फिर आदल ने मेरा ज़्यादा मगज नहीं टाटा और तवील सफ़र के बाद ये पहली रात थी कि हम सुकून से सोने वाले थे। सभी खासे थके हुए थे इसलिए जल्दी सो गए मगर थकन के बावजूद मुझे नींद नहीं आ रही थी और फिर भी मैंने आंखें बंद कर लीं और उसी के साथ
मैं उस पुर इसरार तजर्बे से गुजरने लगी जो अब भी मेरे लिए नया नहीं रहा था, और यके बाद देगरे मुझे मुख्तलिफ मनाजर दिखाए जाते रहे और सरगोशियों में बहुत कुछ बताया जाता रहा, और उन मनाजर का ताल्लुक रियासत कोडक और राजा चकवीर से था। गालबन इस तरह मुझे रियासत के माजी और हाल से आगाह किया जा रहा था, और उसका यकीनन कोई न कोई सबब था, और जिससे भी मैं आगाह नहीं थी मैं सब कुछ देख और सुन रही थी और महसूस कर रही थी। पहला मंजर किसी मेले का सा था और लोग गंगा स्नान कर रहे थे, और एक हसीन और नौजवान लड़की का चेहरा मेरे सफ़ा ज़ेहन पर उभरा, और उसकी उम्र 18 साल से ज़्यादा नहीं लगती थी। उसी की मांग भरी हुई थी, यानी वो शादीशुदा थी और सोने के जेवरात से लदी हुई। उस लड़की से कुछ ही फासले पर मैंने राजा चकवीर और लंगड़े बसूदिया को देखा। उस लड़की के बारे में पता लगा कि यह कौन है और किस घर की है, और राजा चकवीर ने हरीस नजरें लड़की की तरफ उठाते हुए बसूदिया को मुखातब किया, और खिलाफ तवक्का बसूदिया घबरा सा गया और फिर कहने लगा, पता लगाता हूँ मालिक, मगर 2-4 दिन ठहर जाएं तो अच्छा रहेगा। अच्छा बुरा मुझे ना समझा। और राजा मुंह बिगाड़ कर बोला, और जब कहता हूँ वो कर, ज्यादा बातें ना बना। मालिक, यह साहूकार शेटी की बहू है, और राजमहल पहले ही शेटी का मकरूद है, और उसकी बहू पर हाथ डालना कुछ ठीक नहीं रहेगा। और बसूदिया ने बताया, और शेटी के तलकात भूमपा और लक्ष्मी नारायण दोनों ही वजीरों में से हैं, और बात कहीं बढ़ ना जाए तो निरा उल्लू का पट्टा है। अबे हर काम के लिए रास्ता निकाला जाता है, और महल में रानी की सेवा में लड़की को भेजने के लिए भी तो कहा जा सकता है, और सेवा के लिए कहीं या कुछ और, उनके लिए एक ही बात है मालिक। वो समझ जाएंगे कि ये आपकी ख्वाहिश है, और शीटी किसी तरह दब कर मान भी जाए तो बेटा नहीं मानेगा, और बेटा अगर मान भी गया तो उसकी माँ नहीं मानेगी, और बात बढ़ जाएगी मालिक। हमने रियासत के खजाने के लिए शीटी से कुछ रकम मांगी थी, याद रहे तुझे कि उसने हमें किस तरह बातें बनाकर बहला दिया, और उस वक़्त के हीले बहाने का नतीजा अब उसे भुगतने दे। तो जो तो तुझसे कहा गया है उस पर अमल कर, और लड़की का मुतालबा उससे बहाना रानी का बना। जो हुक्म मेरे मालिक। और बसूदिया ने मुर्दा सी आवाज़ में जवाब दिया।